Hello students, I hope you have watched last class of 9th standard science, and in that we have discussed a very important topic, and that topic is can matter change its state. So अभी आपको पता होगा कि can matter change its state का आंसर क्या है. तो the answer is yes, matter can change its state. It's a very important topic and very crucial for your 9th standard science. So yes, matter can change its state, and we have understood this particular concept with an activity which is there in book. Even you must have seen the activity which is there in the video which I have performed at my home. Of course, I was not having thermometer, but I tried my best to convey the message that matter can change its state. इसमें थोड़ा voice quality थोड़ा अलग होगा because it was shoot by different object. तो मेन समझना ये था कि जो आइस है वो पिघलता है और अपना स्टेट चेंज करता है. तो हमने वो एक्टिविटी से कंक्लूड किया था कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, बट अब हमें वो समझना है कि उससे जुड़ी हुई कुछ प्रोसेसेस है. क्योंकि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं. ओके, सॉलिड, अब सॉलिड से हो रहा था लिक्विड, और लिक्विड से भी हो रहा था गैस. बट इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर associated with this particular process was temperature. So under the effect of temperature, this was happening. It increased. This line shows that there is an increase in the temperature, and temperature बढ़ रहा है तो solid liquid हो रहा है, liquid gas हो रहा है. So this is the very important process occurring here कि solid से liquid, liquid से gas हो रहा है, and this process is very important for us. तो temperature बढ़ रहा था, और temperature बढ़ने के साथ साथ states change हो रहे थे matter के. So now we are going to understand what? We are going to understand one very important process which is called melting. पहले तो समझते हैं melting क्या है. What is melting? So melting is a process which is a process in which solid converts into liquid. When solid is converted into liquid, that process is called melting. Melting is a process in which solid is converted into liquid. Now again this process has one important factor, and that is temperature. कुछ वर्ड्स जो हो गए वो आपको याद रखने कि जब भी कोई भी मैटर का अपना स्टेट चेंज होता है तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स मतलब कि कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे ही. whenever any matter is going to change its state, certain factors, certain processes is going to be there, and these processes are, first of all, process और factor दोनों है. तो पहले तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा, दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर विल बी प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी. अब हीट एनर्जी मिलेगी जब मैटर को, तब क्या होंगे, तब होंगे वाइब्रेशंस. और जब वाइब्रेशंस होंगे तब क्या होगा, तो जब वाइब्रेशंस होंगे तब मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होगी. देयर वुड बी मूवमेंट इन द पार्टिकल्स. So particles are going to get vibrations, and that is why which energy will be there, kinetic energy. So this is very important
aspect. Okay, so these four factors or four processes, temperature is the factor, heat energy is the process of giving heat to the object, heat energy जब देंगे तब vibrations means it's a movement, it's a one type of process which occurs in the molecules, and kinetic energy, kinetic energy मतलब particles जो होंगे अपने space बनाने का start कर देंगे, वो movement करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जब होता है तब क्या होता है, तब मैटर अपना स्टेट चेंज होता है। तो मेल्टिंग की प्रोसेस में भी ये होता है। मेल्टिंग मतलब क्या, सॉलिड व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो हर एक टेम्परेचर, हर एक जो मैटर है उसका एक मेल्टिंग का प्रोसेस है ना, वो अलग होता है। अभी ये जो पेन है उसको अगर मैं मेल्ट करूंगा तो इट विल टेक टाइम, राइट। इसको मैं जलाऊंगा, ये मेल्ट होगा, इसको मैं जलाऊंगा, हीट होगा। आइस ऐसी चीज है, आइस जिसको तो हीट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आइस रूम टेम्परेचर भी होगा ना तो भी वो पिघल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि दोनों का मतलब कि ये पेन का और आइस का मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। इसलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं जो आपको इसकी डेफिनेशन से याद रखना है, जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, the temperature at which solid is melted into liquid, the temperature at which solid is melted into liquid, solid जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास अर्थ है ना, तो उसका एक एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर का हमेशा हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है, दिखता नहीं लेकिन प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो प्रेशर जब चेंज होगा तो मेल्टिंग की प्रोसेस भी चेंज हो जाएगी। तो जब प्रेशर देते हैं तो मेल्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर कम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमारे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि हमारे पास अभी आइस है और आइस को अभी पिघल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो पिघल जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर नॉर्मल है। सेम प्रोसेस अगर हम मून या दूसरे प्लेनेट पे करेंगे जहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो प्रोसेस कुछ अलग होगी। हाइट पे करेंगे तो कुछ अलग होगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो the temperature at which solid is melted into liquid at atmospheric pressure is called melting point of that solid। वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वो होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन एक है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। पिघलने का जो तापमान है, पिघलने का जो टेम्परेचर है वो अलग है। सो दिस डेफिनेशन मस्ट बी रिमेंबर बाय ऑल ऑफ यू। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्टेड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure is called melting point of that solid। वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट करेंगे। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी प्रोसेस है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जो मेल्टिंग की प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि मेल्टिंग का मतलब ये है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। बट कौन से टेम्परेचर पे होता है वो टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग। इसलिए यहाँ पर देखा है द टेम्परेचर एट व्हिच, कौन से टेम्परेचर पे होगा वो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको ये डेफिनेशन जो है उसका एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। कैसे
कि मैं बीकर के अंदर, एक बीकर है, उसके अंदर आइस क्यूब में, यहाँ पर आइस क्यूब रखे हैं। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट एनर्जी टू इट, इसको मैं हीट एनर्जी नहीं दे रहा, क्योंकि इसको मैंने रूम टेम्परेचर, मतलब अभी मेरे रूम का टेम्परेचर है वहां मैंने रख दिया। समझ लो टेम्परेचर ये रूम का अभी है, टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर, और ये रूम टेम्परेचर जो है उस पे मैं इसको रख रहा हूँ only for 2 minutes और 3 minutes। टाइम यहाँ पर लिख देते हैं 5 minutes। What will happen after 5 minutes? तो आपको करना है, आइस रखे होंगे, अगर आइस नहीं है तो रखो, आइस को रखो, आइस हो जाता है, उसके बाद आइस को बकेट के अंदर या ग्लास के अंदर, एक आइस का टुकड़ा होगा तो भी चलेगा, रखो। 5 मिनट के बाद देखो क्या होता है। हीट नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। वो एक्टिविटी में तो मैं हीट इसलिए दे रहा था हीट, क्योंकि समझाना चाहता था कि टेम्परेचर का एक फैक्टर है और जितनी हीट ज्यादा होगी उतना जल्दी मेल्टिंग होगा। ओके, बट आइस जो है ये क्या है? दिस आर आइस क्यूब्स, ये आइस क्यूब्स है। 5 मिनट वेट किया, आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट विल हैपन? क्या होगा? आफ्टर 5 मिनट्स आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट। आइस जो है वो मेल्ट होने की शुरुआत करेगा, मतलब कि आइस जो होगा वो अपना स्टेट चेंज करेगा। आइस इज अ सॉलिड स्टेट, आपको पता है, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो आइस क्यूब अभी आइस क्यूब नहीं रहेंगे, आइस क्यूब बन गया वाटर आफ्टर 5 मिनट्स। तो उसका मतलब ये कि ये टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो गया। ओके, अब आइस का जो टेम्परेचर है मेल्ट होने का, वो डिसाइड करने के लिए हमें एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो फिक्स्ड है कि आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मेल्ट हो जाता है। तो ये तो हमने सिर्फ एक एक्टिविटी समझी मेल्टिंग की प्रोसेस को समझने के लिए, लेकिन अब हम क्या कंफर्म करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस अगर 0 डिग्री पे भी आप रखोगे तो वो पिघल ही जाएगा। इवन आप फ्रिज के बाहर निकालते हो, आइस पिघलने की शुरुआत हो जाती है। तो आइस पिघलने की शुरुआत 0 डिग्री से हो जाती है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होता है, इसीलिए उस टेम्परेचर को आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो फिर इन द ब्लैंक पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर वुड बी 0 डिग्री। लेकिन आपको मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट which is called SI यूनिट which is सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे टेम्परेचर के 2 यूनिट है। There are 2 units to understand temperature, to give measurement, to give temperature। हम लोग अलग अलग यूनिट लेते हैं, जैसे मेजरमेंट के यूनिट कौन से है? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर। टाइम के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? सेकंड है। सेकंड के बाद कौन सा है? मिनट्स के बाद कौन सा है? मिनट्स के बाद है आवर। You must have studied this particular concept in 8th standard, the chapter motion which you have studied 8th standard, time and motion। तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा, आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे, इसके मीटर पर सेकंड जो स्पीड का एक इंटरनेशनल यूनिट है। तो उसी तरह टेम्परेचर का एक स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो क्या है? तो ऐसा यूनिट जो है वो है केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। आई होप आप सब ये नोट डाउन कर रहे होंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक दिस पर्टिकुलर नोट्स व्हेन आवर स्कूल स्टार्ट। तो प्लीज नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। सो ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल
unit of standard unit of temperature is Kelvin. केल्विन भी है और सेल्सियस भी है, सेल्सियस भी है। तो इसीलिए आइस के मेल्टिंग पॉइंट दो है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कौन से है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, which is also written as K। जैसे यहाँ पर C है तो वैसे ये K। तो केल्विन जो है वो यूनिट, वैसे तो ओरिजिनली क्या है आइस का 273.16 केल्विन आइस का, लेकिन ये 16 जो है ना 0.16 उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं। सो द SI unit of temperature is Kelvin and also Celsius. So melting point of ice is 0 degree Celsius or 273.16 Kelvin. Okay, so ये आपको याद रखना है कि इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आइस का। अब इन जनरल क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये आइडियल, जब 0 डिग्री होगा ना तो 273 केल्विन होगा, तो 33 डिग्री होगा सेल्सियस तो क्या होगा? तो इसको प्लस करना पड़ेगा, which is a very important process and very important mathematical calculation for this chapter। हमेशा एग्जाम में 1 मार्क का वो पूछते ही है कि convert Celsius into Kelvin, Kelvin into Celsius, which is going to be taught by me in the further classes। तो अभी तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? अभी हम लोग समझ रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट हमने समझ लिया, ये है क्या? यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। These are the units of temperature। 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है 273.16 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन भी है। ये जो 0.16 है उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। और हम लोग केमिस्ट्री के अंदर मतलब कि जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग इसको ही फॉलो करेंगे। एक्चुअल में है ये 273.16, but we are going to understand with this particular figures because 0.16 can be neglected, so that is why this is going to be in the calculations when we convert Celsius into Kelvin and Kelvin into Celsius। So this is very important understanding for all of you। I hope you have understood this particular concept, and if you have not, please watch again this video, and if not, again if you are not understanding, let me know in WhatsApp group, I can put it in doubts session। Okay। So अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। This topic is very important, which is called latent heat। What is latent heat? आप सबको पता है what is heat। When temperature is increased of particular solid, liquid or gas, the kinetic energy increases, and the energy which is given at the initial phase is called heat energy। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एनर्जी मिलती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसको हम कहते हैं हीट। जब हीट एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं हीट। गर्मी लगती है, गर्मी जिसको बोलते हैं हीट। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब सामने क्या बढ़ता है? हीट एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ता है? हीट एनर्जी। अब हम लोग एक सिंपल कंसेप्ट जो है उसको थोड़ा एडवांस वे में समझेंगे कि व्हाट इज latent heat। We have understood melting point, so we all know what happens। सबसे पहले कोई भी चीज
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, तब क्या होता है? फर्स्ट, टेम्परेचर जब बढ़ता है, सबसे पहला क्या होता है? टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड, हीट एनर्जी इंक्रीजेस। थर्ड, vibrations in the particles of matter occurs. Fourth, kinetic energy increases. And fifth, state of matter change. सॉलिड से जब लिक्विड और लिक्विड से जब गैस कन्वर्ट होता है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, तब चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस की टेम्परेचर बढ़ना, हीट एनर्जी बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, हीट एनर्जी बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, हीट एनर्जी बढ़ना, पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। ये चार है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी कोई भी स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सो दिस फोर प्रोसेसेस इज गोइंग टू बी देयर ऑफ कोर्स, बट कभी-कभी एक ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जो इनिशियल लेवल पर हम समझ नहीं पाते, बट जब हमने मेल्टिंग समझा तब हम एक और प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या होता है? हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर ये आइस क्यूब्स है, और ये आइस क्यूब्स को हम, these are ice cubes, ओके। अब ये आइस क्यूब्स को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब आपको पता होगा, हीट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे ये आइस क्यूब बन जाएंगे वाटर, ठीक है। लेकिन सारा वाटर नहीं, अभी भी थोड़े बहुत आइस क्यूब है, टुकड़े अभी भी थोड़े है, तो आइस क्यूब और वाटर दोनों है, आइस क्यूब और वाटर दोनों। अब हमने क्या किया? वी सडनली स्टॉप प्रोवाइडिंग हीट, मतलब बंद कर दिया, हीट देना ही बंद कर दिया। क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या हो सकता है? सोचो। ये आइस क्यूब जो है ना, ये आइस क्यूब, ये भी वाटर बन जाए। These ice cubes will also be converted into water. But confusion नहीं लगा कि यार हीट तो हमने देना बंद कर दिया था, तो आइस क्यूब कैसे बन गए? आइस क्यूब कैसे लिक्विड में बन गए? हीट दे रहे थे, तो आप बोलोगे कि टेम्परेचर की वजह से। हाँ, तो टेम्परेचर तो है, पर टेम्परेचर देना बंद कर दिया। टेम्परेचर देना बंद कर दिया तो भी फटाफट आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। What would be the reason? The only reason is that कि ये जो आइस है, ये आइस क्यूब्स है, उनके अंदर एक हीट थी जिसको हम कहते हैं हिडन हीट, ठीक है। वो हिडन हीट जो थी वो प्रोवाइड की गई। वो किसके पास थी? तो वो थी ये बीकर के पास। ये बीकर देख रहे हो? ये बीकर के पास हीट मींस when heat energy is given, certain heat is absorbed also. Solids के अंदर भी heat जो होता है वो absorb हो रहा है, and that absorbed heat which is hidden in any solid, उसको हम कहते हैं latent heat. Latent heat का मतलब क्या है? Latent heat means what? Latent heat means what? Hidden heat into solids. Solid के अंदर जो heat hidden होता है उसको हम कहते हैं latent. This latent heat is that is why जो आइस था उसका कन्वर्जन हुआ था किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। बीकर के पास वो हीट था, हमने हीट एनर्जी देना बंद कर दिया, तो भी बीकर के अंदर, बीकर के पास वो हीट एब्सॉर्ब होके रखी थी। तो बीकर ने जो हीट एब्सॉर्ब हुई थी ना, वो हीट उसने ट्रांसफर कर दी
किसको, आइस क्यूब्स को, एंड दैट इज व्हाई आइस क्यूब भी विदाउट हीट एनर्जी भी वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको हीट एनर्जी बर्नर से नहीं मिली लेकिन बीकर से मिल गई, क्योंकि बीकर में बर्नर की हीट जो थी वो एब्जॉर्ब की थी। तो ये जो एब्जॉर्ब हीट है जो अंदर छिपी रहती है उसको हम कहते हैं हिडन हीट। So in this way we can understand the concept of latent heat. So I hope you have understood till this particular topic, and you must complete your homework, which is definition of melting point, okay, and explain, ये आपका क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन 1 मार्क का होगा। एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग विथ एन एक्टिविटी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। दिस वुड बी ऑफ 3 मार्क्स। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर होमवर्क बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक इट। Okay, so stay connected and please watch this video 2 to 3 times so you can understand topic thoroughly, and in next class we are going to continue further with this particular topic, in which we are going to understand boiling point and boiling temperature, okay, and what is boiling is also going to be understood by you। but वो देखने से पहले आप आगे वो जो हमने एक्टिविटी की थी, जो वीडियो के अंदर जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी फिर से देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बॉइलिंग की प्रोसेस भी आपको समझाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।